come training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So on behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga representing Rajlakshmi Solutions. So today we are here going to talk about credit and cash flow management in Tally Prime. So just before moving ahead to the today's topic, let's have a small introduction of Rajlakshmi Solutions. So we are into multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are into multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So now let's move ahead with the today's topic. So now the speakers are here. The presentation will be done by Ms. Pinaj. So Ms. Pinaj, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Mr. Firoz. So Mr. Firoz, are you here? Firoz? Yes, ma'am. Okay. Okay. So now I request both of you to move ahead with your presentation and the live demonstration. Hello, good evening all. Myself Pina Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. On behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solutions, I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead to our today's topic is credit and cash flow management in Tally Prime. So today our first point is receivable and payable management. Receivable. When you do sell on credit, you would certainly need to keep track of due amount that your parties owe you. All such due from your parties will be your outstanding receivable. अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आपके जो डेटर्स है उनसे आपको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेना बाकी है उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का रिपोर्ट आप रिसीवेबल में देख सकते हो. पेबल्स. When you make some purchases or obtain service from your vendor, you need to keep track of all the payment that you have to make within the due date. All such pending payment to your parties are outstanding payable. अगर आप क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो आपके जो क्रेडिटर है उनसे आपको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेना बाकी है उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का रिपोर्ट आप पेबल में देख सकते हो. नेक्स्ट इज एजिंग एनालिसिस. Stock aging analysis in Tally Prime display the age of the stock in hand. This report lists the age-wise breakup of inventory to demarcate old stock. Tally Prime gives its user to flexibility to define their own aging slab. The aging analysis report produces a default aging period of less than 45 days, 45 to 90 days, 90 to 180 days, and greater than 180 days. You can define the aging slab depending on the requirement. In Tally Prime, aging analysis the aging analysis can be applied on ledger or group outstanding and bill receivable or payable screen. Stock aging analysis ये फीचर आपको आपके ओल्ड स्टॉक और न्यू स्टॉक को एज वाइज अलग करने के लिए यूज होता है. स्पेशली इसमें आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेज के स्लैब में भी रिपोर्ट निकाल सकते हो. कैश एंड फंड फ्लो मैनेजमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइजेज द फ्लो ऑफ कैश इनटू एंड आउट ऑफ योर बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कैश का फ्लो देख सकते हो कि कितना कैश आपके बिजनेस में आई है और कितने आउट हुए. फंड फ्लो स्टेटमेंट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप आपके बिजनेस में फंड कितना आया है और कितना आउट हुआ है इसका रिपोर्ट देख सकते हो. मल्टीपल बिल सेटलमेंट. यूजिंग बिल सेटलमेंट ऑप्शन इन टैली प्राइम यू हैव अ फास्टर मेथड टू क्लियर पार्टीज बल्क पेमेंट फॉर मल्टीपल पेंडिंग बिल्स टुगेदर. बिल स्टेटमेंट ऑप्शन का यूज करके आप एक साथ कई पेंडिंग बिलों के लिए पार्टी के बल्क पेमेंट कर सकते हो. क्रेडिट कंट्रोल यूटिलिटी. To ensure better credit management, you can set maximum credit limit based on the credibility of the customer. You will also be notified though an alert during a sale invoice if your customer has entry overdue bill. Tally Prime में क्रेडिट कंट्रोल यूटिलिटी एक बेस्ट फीचर अवेलेबल है जो आपके
जो आपको आपके कस्टमर के हिसाब से क्रेडिट लिमिट सेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे जब भी उनका कोई बिल बनेगा, अगर क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा अमाउंट होती है तो एक अलर्ट नोटिफिकेशन आपको शो हो जाती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स. Payment performance of debtor is the average time to customer take to pay their bills, irrespective of the outstanding balance on the statement date. It is possible that the receivable turnover is low and the payment performance is high, indicating that the customer cleared their outstanding but took a long time to do it. टैली प्राइम में पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर एक यूनिक फीचर अवेलेबल है जो आपको हेल्प करता है कि आपके पार्टी ने कितने दिनों में उनका पेमेंट क्लियर किया है और ड्यू डेट के बाद कितने दिनों में उन्होंने पेमेंट पूरा क्लियर किया है. ये उनके परफॉर्मेंस वाइज शो करता है. नाउ इट्स टाइम फॉर द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सो आई रिक्वेस्ट फिरोज सर टू प्रोसीड अहेड. थैंक यू. Live demo session on behalf of Raj Lakshmi Solution Private Limited. So I will share my screen. Okay. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा जो रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट जो हम टैली में यूज करते हैं उसको आप सबको तो पता ही है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बैलेंस मैच करने के लिए, हमारा पेमेंट रिसीव एंड पेमेंट के लिए. तो उसके लिए अभी सबसे पहले हम जाएंगे. अभी मेरा ऑलरेडी वाउचर्स बना हुआ है. सभी वाउचर्स प्रॉपर वे में अगर बने हुए रहेंगे तो ही उसके बाद हम पेमेंट एंड रिसीवेबल में हम प्रॉपर वे में रिपोर्ट देख सकते हैं. तो उसके लिए हमको प्रॉपर वे में हमारा इंटरेस्ट फिल करना जरूरी है. जैसे कि अब हमारा ट्रैकिंग के लिए होता है, तो ट्रैकिंग के लिए हमको रेफरेंस वगैरह इंपॉर्टेंट है. जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम पास करते हैं तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट. तो सबसे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जब भी सेल इनवॉइस और परचेस इनवॉइस जब क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट हमारा न्यू रेफरेंस ही आना चाहिए. हम न्यू रेफरेंस लेंगे तो हमारा रिसीवेबल एंड पेबल में प्रॉपर वे में रिपोर्ट मैच करेगा. तो उसके लिए सेल इनवॉइस में हमको न्यू रेफरेंस रखना है. और जब भी इसका पेमेंट हम रिसीव करेंगे तो उसको ट्रैकिंग के थ्रू यूज करना है. अगर यहाँ पर न्यू रेफरेंस रहेगा तो उसके बाद ही आप प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट है. देन उसके बाद में ही हम रिसीवेबल पेबल में प्रॉपर वे में कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं जाता हूँ डिस्प्ले रिपोर्ट में. देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग. तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं रिसीवेबल एंड पेबल, ये 2 ऑप्शन है. तो सबसे पहले हम देख लेंगे रिसीवेबल में. रिसीवेबल में ये रहता है जो भी हमारा पार्टी रिसीव करना, पार्टी को जो पेमेंट देना है हमारा जो पेंडिंग है, तो वो पूरा पेबल में दिखाई देता है. और जो भी हमको पार्टी से पेमेंट आना बाकी है उसको देखने के लिए हम रिसीवेबल में देखते हैं. तो सबसे पहले हम पेबल में देख लेंगे. पेबल में देख लीजिए, अगर हमारा ट्रैकिंग अगर प्रॉपर रहेगा तो ही आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में रिपोर्ट दिखेगा. जैसे कि ये मेरे 3 इनवॉइस है, ये तीनों इनवॉइस हमारे पेंडिंग है. मींस इसका हमने पेमेंट रिसीव नहीं किया है, अभी हमने पेमेंट पे नहीं किया इसका प्रॉपर, तो इसके लिए पेंडिंग में दिखाई दे रहे हैं. तो इसको हमको यहाँ से अगर रिमूव करना है तो उसके लिए हमको ट्रैकिंग के थ्रू पेमेंट पास करना रहता है. तो जैसे कि ये मेरे 3 पेमेंट पेंडिंग है, तो उसके लिए मैं अपन ट्रैक करके उसको क्लियर कर लेंगे. सबसे पहले मेरा लास्ट वाला इनवॉइस जो है इसको ले लेंगे. ये 1 अक्टूबर को हमारा जनरेट हुआ है परचेस इनवॉइस का, तो इसका पेमेंट पार्टी को देना बाकी है. तो ये हम जब भी देंगे तो उसके बाद यहाँ से रिमूव हो जाएगा. सबसे पहले हम इसके लिए पेमेंट की एंट्री पास करेंगे. तो उसके लिए वाउचर में जाता हूँ मैं. वाउचर में जाने के बाद F5 प्रेस करेंगे. देन F2 से उसका जो डेट हमको लेना है ले लेंगे. या मेंशन करना है हमको बैंक से लेना है पेमेंट या फिर कैश लेना है. तो मैं ले लेता हूँ मेरा पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे. पार्टी सेलेक्ट करने के बाद में अभी हमको यहाँ पर अमाउंट डालना है ओनली.
जो भी हमारा अमाउंट रहेगा वो यहाँ पर ओनली मेंशन कर लेना है। जैसे कि मैं मेरा अमाउंट ले लेता हूँ 10,000। उसके बाद में देख लीजिए, अगर हमारा रेफरेंस प्रॉपर वे में रहेगा तो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखाई देगा। जैसे कि ये चार इनवॉइस जो है ये हमारे पेंडिंग है, तो इसको हमको ट्रैक करना है, ट्रैकिंग के थ्रू इसको क्लियर करना है। तो ये मैं अगेंस्ट रेफरेंस ले आऊँ, क्योंकि मुझे ये बिल के अगेंस्ट पेमेंट देना है। हमारा कितना भी अमाउंट रहेगा तो ओनली यहाँ पर डालना है, और इसमें से हम कोई भी इनवॉइस के अंदर से हम उतना अमाउंट रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ ये 1,80,000 अमाउंट पेंडिंग है, उसमें से 10,000 में माइनस कर लेता हूँ, मीन्स पार्टी को हमने ये दे दिया है। तो ये उतने अमाउंट में से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि अभी इसका अमाउंट कितना बचा है, 18,000 था, 1,18,000, अभी 8,000 बचा है। तो इस ट्रैकिंग के थ्रू हम हमारा आउटस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। अभी इसका अमाउंट बचा है 1,08,000, तो हम पूरा ट्रांसफर कर लेंगे। ये मेरा अमाउंट क्लियर हो चुका है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। देन हम जाते हैं पेबल में, हमारे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एंड पेबल। अभी देख लीजिए, मेरे यहाँ पर 3 इनवॉइस दिखाई दे रहे थे। जो हमारा पावर सॉल्यूशन जो पार्टी था उसका एक बिल पेंडिंग था, जो हमने अभी ट्रैकिंग के थ्रू उसको रिमूव कर दिया। तो इसी टाइप हम जितने भी हमारे पार्टीज का पेमेंट बचा हुआ है ट्रैकिंग के थ्रू ही हमको पास करना है, तो हम आउटस्टैंडिंग हमारा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये पेबल में से मेरे 2 ही पार्टीज बचे हैं, 2 इनवॉइस। इसको भी इसी तरह ही हमको रिमूव करना है, जो हम ट्रैकिंग के थ्रू भी इनवॉइस क्रिएट करें। ये मेरा पेबल का हो गया। देन उसके बाद में रिसीवेबल मीन्स हमारा जो पार्टी से पेमेंट लेना बाकी है। अभी देख लीजिए, इतने इनवॉइस मेरे पेंडिंग अमाउंट में बता रहे हैं, मीन्स इसका हमने कोई पेमेंट रिसीव किया नहीं है, तो ये पेंडिंग में शो कर रहे हैं। तो इसको भी हम उसी तरह यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमको रिसिप्ट की एंट्री पास करना होगा। F6 से रिसिप्ट की एंट्री, डेट ले लेंगे, एंड जो हमारा पार्टी है सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से रेफरेंस ले लेंगे। अभी मान लीजिए मैं 20,000 लिया हूँ, अभी यहाँ 20,000 का तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 122 जो पेंडिंग है ये भी ले सकता हूँ। देन अगेंस्ट रेफरेंस लेके 4250 वाला अमाउंट बचा है वो भी ले सकता हूँ। एंड मेरा जैसे कि 29 अमाउंट है, ये भी मैं ऐसे ले लूंगा। अभी 20,000 में जितने उसने रेफरेंस लिया है वो ले लिया है, बचा हुआ अमाउंट वैसा ही रहेगा। तो इस टाइप हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं हमारे रिसीवेबल में से। अभी देख लीजिए, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीवेबल। तो यहाँ से कुछ हमने इनवॉइस रिमूव किए हैं रिसिप्ट के थ्रू। अभी इसमें 2 तरीके हैं जो हम बिल सेटलमेंट करते हैं, उसके दो ऑप्शन है। जैसे कि अभी मैंने एक बताया आपको, ये एक ऑप्शन हो गया। सेकंड हम और एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम मल्टीपल बिल भी सेटलमेंट कर सकते हैं, एंड वो ओनली ऑप्शन जो है वो रिसीवेबल में ही होता है। जैसे कि हम पेबल में ट्राई करेंगे तो दिखेगा नहीं, तो मैं आपको रिसीवेबल में बताता हूँ। और रिसीवेबल में हमको रिमूव वो पॉइंट यूज करने के लिए लेजर में जाना है। जो भी पार्टी का हमको यूज करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ले लेता हूँ सुपर ट्रेडर्स। अभी मेरे 5 इनवॉइस पेंडिंग है, हम इसको पहले सिंगल वे में यहाँ से सेटलमेंट करेंगे। तो मैं स्पेस की से उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर सेटल बिल लिखा हुआ है, अल्ट बी इसका शॉर्टकट की है। सेटल बिल करने के बाद में अभी देख लीजिए, जो बिल का अमाउंट है 11,800 जो अमाउंट है अभी ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे कि इस पे क्लिक करने के बाद में 11,800 उसका अमाउंट आ गया है। देन उसका जो वाउचर टाइप है रिसिप्ट का, ये भी ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लिया है, एंड उसका
अपने को जो डेट लेना है यहाँ से एज अ डेट लेकर हम इसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 5 अक्टूबर लेकर इसको बैंक में रिसीव कर लेता हूँ। जो हमारा नरेशन अगर होगा तो डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं सेव कर लेता हूँ। अभी इसको सेव कर लेंगे हम, तभी देख लीजिए यहाँ से ऑटोमेटिकली रिसिप्ट की एंट्री पास हो चुकी है। ये इस टाइप एक ये शॉर्टकट वे में हम बिल सेटलमेंट कर सकते हैं। ये हो गया सिंगल इनवॉइस का। अभी ये पूरा रिसिप्ट का वाउचर बन गया हमारा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देन उसके बाद में हमको मल्टीपल बिल सेटलमेंट कर लेंगे। अभी जो बताया मैंने वो सिंगल वे में था, और अभी मैं मल्टीपल बताता हूँ। सपोज मैं ये 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 3 इनवॉइस सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में सेटल बिल। अभी देख लीजिए तीनों बिल का उसने अमाउंट ऑटोमेटिकली ले लिया यहाँ पर 175, 174 उसका अमाउंट। देन हमको रिसिप्ट की एंट्री पास कर लेना है, एंड जो डेट है उस डेट में लेके हम नरेशन डाल के सेव कर लेंगे। इस टाइप ये हम सेटलमेंट कर सकते हैं यहाँ से। अभी देख लीजिए मेरा एक ही इनवॉइस बचा है, तो ये शॉर्टकट वे है इसका। हमको नॉर्मल वाउचर बना के ट्रैकिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो हम यहाँ से अगर सेटल कर लेंगे तो ये उसका एक शॉर्टकट वे है, ये ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सभी मेंटेन करने से हमारा आउटस्टैंडिंग प्रॉपर वे में मेंटेन हो सकता है। एंड ग्रुप वाइज भी हम देख सकते हैं, ग्रुप वाइज भी हमारा आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। अभी देन उसके बाद में हम लेते हैं एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस एक ऐसा पॉइंट है, मान लीजिए जैसे कि हम डेज काउंट करते हैं, 1 से 30 दिन के हमारा कितना इनवॉइस बना है, 30 से 60 दिन के अंदर कितना इनवॉइस बना है, ये देखने के लिए हम एजिंग मेथड यूज करते हैं। अभी हम जैसे कि रिसीवेबल के लिए वो मेथड यूज करेंगे। अभी राइट साइड में ऑप्शन है F6 एजिंग मेथड, इस पे क्लिक करेंगे, एजिंग बाय बिल डेट। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए हमको कितने डेज का सेटअप करना है। जैसे कि मैं 30 डेज का सेटअप किया है, 30 to 60, 60 to 90, 90, ये इस टाइप हम सेटअप करेंगे। अभी मैं इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी देख लीजिए यहाँ पर बता रहा है 0 to 30 डेज में कितने हमारे इनवॉइस रेस हुए, ये उसके लिस्ट में आ गए हैं। एंड 30 to 60 डेज में कितने इनवॉइस रेस हुए, ये तीन उसके लिस्ट में आ गए। एंड 60 to 90 डेज में जो हमारा बना हुआ है तो वो 0 है, तो इसके लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। देन बाकी पूरा डिटेल्स आपको डिस्प्ले करेंगे यहाँ से। तो ये एजिंग मेथड हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने जैसे कि रिसीवेबल में यूज किए, अभी हम पेबल में भी देख सकते हैं। पेबल में भी एजिंग मेथड का ऑप्शन दिया है, इस टाइप हम सेट कर सकते हैं। ये सब भी के लिए रहेगा। इसमें भी देख लीजिए 0 to 30 डेज के अंदर ये एक इनवॉइस बना था, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और लेजर वाइज भी देखेंगे हम, लेजर वाइज भी ऑप्शन दिया हुआ है एजिंग मेथड। ये इस टाइप हम हमारा एजिंग मेथड देख सकते हैं। इसमें हमको पता चलता है कि हमारा इनवॉइस कितने दिन में कितना बना है, कौन से डे में कितना बना है। इसके लिए एक सिंपल ऑप्शन दिया हुआ है। एंड हम उसको स्टॉक समरी में भी यूज कर सकते हैं। ये सभी लोकेशन पे आपको ये दिखाई देगा, सभी तरफ से हम इसको देख सकते हैं जो भी हमको देखना है। देन इसके बाद में हम लेते हैं कैश एंड फंड फ्लो। कैश का मीनिंग ये है, कैश फ्लो जो हमारा बिजनेस में जो हम कैश के ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश के लिए जितना भी हमारा इनवॉइस क्रिएट हुआ है वो कैश फ्लो में रेस होता है। जैसे कि कैश इनफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो है। अभी उसके लिए ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में कैश फ्लो। कैश फ्लो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मंथली वाइज आपको दिखाई दे रहा है मेरा सितंबर मंथ में कितना बना है एंड अक्टूबर मंथ में कितना बना है। कोई एक मंथ ओपन कर लेता हूँ मैं। अभी देख लीजिए इनफ्लो हमारा यहाँ पर करंट असेट में है 2,06,974।
ये हमारा इनफ्लो में दिखाई दे रहा है। एंड ये हमारा सन्डी डेटर्स का है, हम उसको ओपन करेंगे तो उसके पूरे ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर दिखाई देंगे। ये कैश इनफ्लो है हमारा। एंड कैश आउटफ्लो में हमारा देख लीजिए सन्डी डेटर जो है हमारे, उसका यहाँ पर भी दिखाई देंगे आपको। इस टाइप भी हम हमारा कैश फ्लो देख सकते हैं। सेकेंड मंथ में जाएंगे, उसमें भी इसी टाइप हमको दिखाई देना। एंड इसके बाद जो है हमारा फंड फ्लो। फंड फ्लो का मीनिंग ये है कि हमारा जितना भी हमने फंड लगा है, मीन्स हमारे बिजनेस में हमने जितना भी इन्वेस्ट किए हैं तो वो फंड फ्लो में काउंट करता है। जैसे कि हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जो लेते हैं अमाउंट वो फंड फ्लो में दिखाई देता है। ये देख लीजिए, अभी फंड फ्लो में जाएंगे तो सभी मंथली वाइज आपको यहाँ पर फंड फ्लो दिखाई देगा। अभी मैं फरवरी मंथ का ले लेता हूँ। उसमें देख लीजिए करंट एसेट में जो हमारा अमाउंट है, टोटल ऑटो कैलकुलेशन किया है नीचे, उसको इंटर करेंगे तो करंट एसेट में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन थे फंड फ्लो वाले आपको पूरे दिखेंगे। यहाँ पर पूरे लेजर वाइज आपको पूरे के पूरे इनवॉइस दिखाई देंगे यहाँ पर, जो हमारे फंड फ्लो के लिए यूज हुआ है। और करंट लायबिलिटीज में भी देख लेंगे हम इंटर करके। यहाँ पर भी फंड फ्लो वाले के लिए जितने ट्रांजैक्शन है आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो इस टाइप हम हमारा कैश फ्लो एंड फंड फ्लो देख सकते हैं यहाँ से। उसका वर्किंग कैपिटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट उसका भी आ चुका है नीचे। तो ये फंड फ्लो का तरीका यहाँ से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी उसके बाद देख लीजिए पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। हमारा जो डेटर पार्टी है उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है टैली प्राइम में। उनका पेमेंट का परफॉर्मेंस किस, उसे देखने के लिए हम रेशियो एनालिसिस में जाएंगे। फिर उसके बाद में रेशियो टर्नओवर इन डेज, उसमें लिखा है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर। अभी इसको इंटर करेंगे हम। तो फॉर एग्जांपल मेरे 3 पार्टी है, 3 पार्टी में से फर्स्ट वाले पार्टी का कोई रिसीव पेमेंट का ट्रांजेक्शन पास नहीं हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर यूजिंग एक्चुअल बिल क्लियरेंस डेट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। और सेकंड वाला मेरा आरएस टेक्सटाइल जो है उसका इनवॉइस बना हुआ है प्रॉपर। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अभी देख लीजिए फर्स्ट वाले इसके अंदर 2 सेल इनवॉइस का रिसिप्ट भी प्रॉपर हमने, जैसे कि हमारा 19 सितंबर उसका ड्यू डेट है और इनवॉइस का भी हमने 19 सितंबर लिए है। और जो उसका जो हमने रिसिप्ट की एंट्री पास की है, एक्चुअल में हमारा ये 19 सितंबर को होना चाहिए था, हमने इसको 20 सितंबर को किए, तो 1 डेज का डिफरेंस हो गया, मतलब ड्यू हो चुका है 1 डेज। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस दिखेगा, 1 डेज यहाँ पर आ गया है और नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट, हमारे डेट से कितने दिन आगे ड्यू बना है। तो यहाँ पर 1 डेज बना है, तो यहाँ पर 1 डेज आपको दिखेगा। सेकेंड वाले इनवॉइस में देख लीजिए 19 सितंबर को हमारा इनवॉइस रेस हुआ है और उसका ड्यू डेट हमने जो सेट किए थे 19 सितंबर, मीन्स हमने 30 डेज का ड्यू रखे। जो इनवॉइस जिस दिन 30 डेज बाद उसका ड्यू चालू हो जाएगा। तो 19 सितंबर को उसका ड्यू ऑन था और हमने जो क्लियर ऑन सितंबर को ही की, तो ये 0 डेज काउंट किए, क्योंकि हमको 19 सितंबर ही लास्ट डेट थी, तो उस टाइम ये प्रॉपर वे में हो गया है ना, तो इसके लिए यहाँ पर 0 डेज दिख रहा है। तो इस टाइप हमको यहाँ पर दिख जाएंगे कि हमारे कितने डेज ओवर ड्यू हो रहे पार्टी से, इससे पार्टी का परफॉर्मेंस पता चलता है। अभी लास्ट वाले इनवॉइस में देख लीजिए, यहाँ पर हमारा इनवॉइस रेस हुआ है और उसका ड्यू डेट 16 सितंबर ही है। तो यहाँ पर हमने उसको जो क्लियर किए 19 सितंबर को किए, तो यहाँ पर 3 डेज का ड्यू हो चुका है, तो इसके लिए यहाँ पर 3 डेज आपको दिख जाएगा। तो इसी टाइप हम हमारे सभी पार्टी का देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी हमारा पेमेंट दे रही है या नहीं दे रही है, कितना दिन लेट करिए, तो ये पूरा यहाँ पर आपको ड्यू डेज दिखाई देगा।
इसी तरह आप सभी आपके पार्टी का देख सकते हैं। देख लीजिए, रेशियो एनालिसिस में जाना है, देन पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स, इस पे एंटर करेंगे तो पार्टी सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं। देन उसके बाद एक लास्ट पॉइंट लेते हैं हम, क्रेडिट कंट्रोल यूटिलिटीज। जैसे कि हमारे पार्टी इसको हम लिमिट देते हैं कि इतने लिमिट के 1 लाख लिमिट दिया हमने कोई पार्टी को, और उसका इनवॉइस हम बना रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा कि इनका लिमिट कितना है, या फिर हमारा अकाउंटेंट उसके ट्रांजैक्शन पास कर दे रहे हैं। तो ये सेट करने के लिए हम लिमिट सेट करते हैं, जैसे कि जो हमारा पार्टी है फॉर एग्जांपल ABCD, तो उसको 1 लाख के ऊपर एक भी इनवॉइस रेस होना नहीं चाहिए, उसका अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है पार्टी लेजर में, अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, मेरा ये पावर सॉल्यूशन पार्टी है, इसको हम लिमिट सेट कर देंगे। उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर डिफॉल्ट, यहाँ से हमको 30 डेज डाल देना है, जितने भी दिन का हमको क्रेडिट पीरियड रखना है तो 30 डेज का हम रखते हैं। देन उसके बाद में स्पेसिफाई हमारे पार्टी को हमको कितना लिमिट रखना है, फॉर एग्जांपल हम 1 लाख रख देते हैं, ये 1 लाख रख दिया हमने। अगर 1 लाख के ऊपर का कोई इनवॉइस रहेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं, आपको बता देता हूँ, इसको सेव कर लेंगे हम लिमिट डालने के बाद। अभी वाउचर में जाते हैं, सेल इनवॉइस पास कर लेंगे उस पार्टी का। स्टॉक आइटम ले लेंगे हमारा 55,000 से इसका ले लेंगे। अब इसका अमाउंट कितना हो, 2,50,000 हो। GST ले लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस ले लेंगे, इसको सेव करेंगे तो उस टाइम बताएगा क्रेडिट लिमिट ऑफ पावर सॉल्यूशन 1 लाख एक्सीडेड। हमारा 1 लाख से ऊपर अमाउंट हो चुका है, इसके लिए वाउचर पास नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से हम हमारे पार्टी में लिमिट सेट कर सकते हैं। अब इसको मैं कम कर लेता हूँ, वन लाख के नीचे हमने अमाउंट लिया इसका। अभी इनवॉइस सेव करेंगे, इनवॉइस सेव करे तो नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसके लास्ट इनवॉइस भी बने हुए। टोटल अमाउंट उसका हो चुका है 1,38,000, बढ़ चुका है 1 लाख के ऊपर, तो इसके लिए इसका ले नहीं रहा है। तो इसी तरीके से हम हमारे पार्टीज में सेट कर सकते हैं, ताकि हम जब भी इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो उसके लिमिट के ऊपर हो पाएगा। उसके लिए सभी पार्टी में आपको लिमिट सेट कर लेना है। इस टाइप आपको ऑप्शन देंगे। सो ये था हमारा क्रेडिट कंट्रोल यूटिलिटीज। टॉपिक एंड होता है। थैंक यू एवरीवन। Okay, thank you Pinaj and Firoz for your wonderful presentation. So, if anyone have any questions regarding today's topic, you can do connect us to the key account manager for any support. Okay, so soon this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our social media and get the latest updates of the upcoming sessions. So thank you so much for joining today's session. So now I will wind up the session. Thank you so much.